અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात चौगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे चौगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात चौगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे चौगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ मुंडा जिद पे अड़ा ओ तेरे पीछे पड़ा ओ मुंडा जिद पे अड़ा तेरे पीछे पड़ा मेरे नाल कर ले जरा
का तुझे लगता खराब मुझे लगता बुरा सौदा इश्क दा जो है तेरा आ आ एंड सेट तू ना हो परे हाथ let me go spoil करना तू मूड मेरा आ आ ओ दिल को तूने छुआ ओ जट सेंटी हुआ ओ दिल को तूने छुआ जट सेंटी हुआ मेरे नाल कर ले जरा दिल देना दिल लेना दिल देना दिल लेना है सौदा है सौदा है सौदा करा करा है सौदा करा करा है सौदा करा करा है सौदा करा करा Yo, yo, mucha gasolina para toda mi gente. Todo el mundo con las manos arriba. Latino. 2, 3, 1. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Que se prepare que lo que viene pa' que le dé. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos los weekends ella sale a vacilar. Mi gata no para janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina Como le encanta la gasolina.
Vice Principal Dr. Mr. Manju Toko, all the HODs, and all our esteemed alumni, and also many of our faculty members, those who are alumni, and also all the faculty members of this college and my dear students. I welcome all of you to this homecoming event. I feel it is better to say it's a kind of homecoming. And I must say I have not come here to give a speech, but I just want to share my sentiments as I interacted with this group, the leader of this group from the beginning. I could see such a lot of enthusiasm, energy in that group, so excited, and they are asking permission that we want to come to college. Can we come? Actually, it's your home. It's your home, I said. To come here, there is no permission. All the students once come here, enter as students and go out. They are always welcome here. I did not say much detail like this, but I just want to say that there is no permission for the students who have gone out of here. No need to seek permission. So the door is always open. The gate is always open. Both gates, the back gate and the front gate. All the main gates, every gate is open for you. Always to come and interact with us. I don't see that much of energy, that much of enthusiasm and vibrancy. The young generation who are sitting here, I am telling you, I can feel the way they entered here, even after entering, even before entering, the planning, how much of excitement, enthusiasm, energy is there. And that is missing here in the present generation. So it's always good that, but I am sorry that many of them are not here, because though it's not a holiday, you know that it's not like the time has changed, not like your time, that discipline and that obedience. Give them a big round of applause for those senior professors. Then I think I will not say much because it's such a gathering where there is no address, is not needed. If my younger ones were there, your juniors were here, I would have spoken much. This is why I did not say, because I am for giving me this opportunity. God bless you all. Thank you. Let's
ज्योत जली। होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर के इस भव्य सभागार में उपस्थित हमारी परम श्रद्धेय प्रिंसिपल सिस्टर शांता सहित इस भवन में विराजमान हमारी समस्त परम सम्माननीय गुणी शिक्षिकाओं को हृदय दिल से प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन स्वीकार कीजिए हमारा कोटि कोटि नमन। साल 1994 दशकों पीछे का एक परिदृश्य। जुलाई का महीना, 12वीं कक्षा के परिणाम के पश्चात उत्तीर्ण होने का मार्कशीट हाथ में लिए दो जोड़ी आंखें उस वक्त की सबसे आला महाविद्यालय की ओर दृष्टिगोचर हो रही हैं और ये हौले हौले मन मस्तिष्क में तय होता जा रहा है कि अब भविष्य इसी प्रांगण में दाखिला लेकर हम संवारेंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कैसे होते हैं, किस मनोभाव से ओतप्रोत होती हैं उनकी जिंदगियां, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। फिर भी हम बताए चलते हैं कि अल्लड़ मनमौजी नए दोस्तों से बिल्कुल अनजान, यहाँ के अनुशासन की कठिनाइयों का दबाव और थोड़े से ताल में तो थोड़े से बेसुध भी, लेकिन दिल में ये ख्याल पुरजोर पुलांचे भरता है कि मार्ग नहीं होते हैं सुगम, मार्ग नहीं होते हैं सुगम, बहुधा आती हैं बाधाएं भी, मार्ग नहीं होते हैं सुगम, बहुधा आती हैं बाधाएं भी, हर अड़चन मिट जाती है यदि वीर कहीं पर डट जाए। मुकुट कहाँ करते हैं निर्णय, मुकुट कहाँ करते हैं निर्णय, किसके मस्तक पर चढ़ना है, जीवंत कर सपनों को हमें इतिहास नया गढ़ना है। 94 बैच की फर्स्ट ईयर की ये छात्राएं आखिर आपसे क्या कहती हैं? फर्स्ट ईयर हाँ
हमारे अंदर एक जज्बा क्रिएट होता है। घर वाले कहते रहते हैं कि पढ़ो, अरे पढ़ लो, पढ़ो यार, पढ़ लो, पैसे मत डुबाओ। लेकिन बावला मन तो कुछ और ही कहता है। द्वितीय वर्ष की छात्राओं का वो क्या कहता है? वो कहता है कि लक्ष्य साध कर हम अपने जीवन का अविरल आगे ही बढ़ना है। लक्ष्य साध कर अपने जीवन का अविरल आगे ही बढ़ना है। जीवन कर सपनों को हमें इतिहास नया गढ़ना है। जीवन कर सपनों को हमें इतिहास नया गढ़ना है। व्यर्थ न सोचें हम ये कि जीवन से दुख के बादल कब हटेंगे। ये आला तरीन जज्बाती स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं, लीजिए जायजा लीजिए इन स्टूडेंट्स के जज्बातों का भी। जिसके खर्चे में मैं सारी जिंदगी निकाल दूँ। मेरे आप को क्या डॉक्टर कर रहा है? लाइन बना रहा हूँ, सपोर्ट करना है। माँ की सॉरी, मेरी माँ काफी दिनों से नथिंग इज इम्पॉसिबल ले सारा फेस गिरा दिया। अब सर डर लगता है। वो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं उसके 3rd फ्लोर से मैंने छलांग लगाई थी। वाह, क्योंकि मुझे रिजेक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टर के रूम में शूशू किया था। आपका ये फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। हमें इसके लिए एक डिप्लोमेटिक पर्सन की ज़रूरत है। अभी इतने सालों से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, कितने सारे इंटरव्यूज किया है, बट तो कहाँ से आपको सैलरी क्या लोगे डिस्कस कर ले। 16 हड्डियाँ करवाने के बाद मुझे यह समझ में आया सारी उम्र मर मर के जीवे, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 ना। Give me some sunshine,
परफॉर्मेंस, इस धमाकेदार प्रस्तुति के लिए 97 बैच का बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं पुष्पा सिंह BSc 94 बैच से हूँ। 30 साल लंबा समय, उसके पहले 15 साल यहाँ। तो कह सकते हैं कि पूरा जो अपब्रिंगिंग है उसमें बहुत ज़्यादा समय होली क्रॉस कैंपस में ही बीता है। क्लास फर्स्ट से पूरा BSc तक इस कैंपस में, और मैं फिर मेरे नन्हे मुन्ने भी यहीं। तो एक हम लोग भाई बहन तो पढ़े ही, आगे पूरी पीढ़ी भी। तो ये सब अपनी जगह सेटल, सब इधर उधर। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इस कैंपस की जो एनर्जी है वो भी दिख रही थी इधर, और वही एनर्जी हम सबके अंदर है, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ रहते हुए वो एनर्जी जो थी सबके अंदर थोड़ी थोड़ी चली ही गई। और इसके लिए थैंक्स हमारे पूरे टीचर्स का, पूरे स्टाफ का। यहाँ कुछ टीचर हैं, मैं ममता मैम को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी। शुक्ला मैम अभी बाहर चली गई हैं, और हमारे बायो और बॉटनी जूलॉजी के टीचर्स का मैं बहुत थैंक्स देना चाहूँगी कि हमारे अंदर उन्होंने हमको जिंदा रखा। पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों के साथ ही वो चीज़ें भी डाली जो लाइफ में काम आई। मेरा नाम पूनम सिंह है, और मैं फिलहाल डाइट में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे हम टीचर्स को ये सिखाते हैं कि आपको पढ़ाना कैसे है। और वहाँ पे जब भी हम अपने टीचर्स के सामने होते हैं, जब उनको टेक्निक्स बताते हैं या जब उनको कुछ भी बताते हैं, तो उदाहरण में ममता मैडम का जिक्र आता है कि वो इस तरह से बातें किया करती थी, या हमारे समय में हमको शारदा प्रसाद द्विवेदी सर गणित पढ़ाया करते थे। और मैं स्कूल के टीचर्स को भी बहुत याद करती हूँ इस समय, क्योंकि जिस तरीके से एक जो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं NDP में आई है, मुझे लगता है होली क्रॉस उस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम मंजल सिस्टर, ममता मैम, कल्पना मैम, अखिल सर, और जितने भी टीचर्स हैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। नमस्कार, मैं रेखा जायसवाल अभी वर्तमान में गवर्नमेंट नवीन कॉलेज प्रेमनगर की प्रभारी प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज बोलने में अंदर से बहुत सारी भावनाएं उमड़ के आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कॉलेज के उन दिनों में पहुंच गए हैं। अंदर की फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं। हमारे सीनियर्स ने अपने एक्सपीरियंस जैसे शेयर किए, तो वैसे ही हमारे अंदर, हम 2007 बैच के हैं, हमारे बैच के वहाँ बैठे हैं 4 लोग। जब 2007 में आए थे इस कॉलेज में, तो जैसे कोरा कागज होता है, पता ही नहीं था किस दिशा में जाना है। लेकिन यहाँ आके हमने जो डिसिप्लिन सीखा कि कैसे कम संसाधनों में एकदम खुशी से जी भर के जिया जाता है, क्योंकि उस समय तो हॉस्टल में मोबाइल भी अलाउ नहीं था, फोन करने का भी एक निश्चित टाइम था, कि हम उतने में ही बहुत खुश रहते थे। पहले शुरू में लगा कि कहाँ आ गए हैं, जेल जैसा लगा था। लेकिन जब मुझे याद है कि जब कॉलेज के पहले दिन आए थे मम्मी पापा मुझे छोड़ने, तो आंखों में आंसू थे। लेकिन जब 2007 में हम इस कॉलेज को छोड़ के, हॉस्टल को छोड़ के जा रहे थे, तब भी आंखों में आंसू थे। उस समय घर से बिछड़ने का दिन था, और 2007 में कॉलेज और हॉस्टल के सारे फ्रेंड से, टीचर से बिछड़ने का गम था। बहुत ही अभी मैं जैसे जिस कॉलेज में पदस्थ हूँ, जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम शांता मैम ने बताया कि NEC की ग्रेडिंग के लिए, तो हमारे कॉलेज में भी लास्ट ईयर पहला NEC हुआ। तो NEC के बारे में उतना कुछ नहीं पता था कि कैसे किया जाए, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा जाने को लगा कि हमने होली क्रॉस कॉलेज में तो बहुत पहले ही ये सब काम कर लिए हैं। 2007 में बहुत पहले ही वो सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देना, सेमिनार आयोजित करना, सारी चीज़ें, और जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस कराते थे हमारे यहाँ पेंटिंग के, सारी चीज़ें, वोकेशनल क्लासेस। तो मैंने अपने कॉलेज में कुछ होली क्रॉस के इम्प्लीमेंट किए वहाँ, और डिसिप्लिन भी जनरली यहीं का रखा। तो मेरा कॉलेज, मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई आए वहाँ, कि स्टूडेंट से मिले, थोड़ा उसमें होली क्रॉस की झलक मिलेगी आपको, क्योंकि अनुशासन है वैसा।
की तो हमारी बहुत सारी यादें हैं, जिसके बारे में बताना चाहूँ या कॉलेज के बारे में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैं बस अभी हमारे सामने न्यू स्टूडेंट भी बैठे हैं जो अभी इस कॉलेज में अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आगे बढ़ेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हमको पता रहता है ना कि कहाँ जाना है हमको। तेल अगर डाले हैं उसमें, अगर इधर उधर घूमते रहेंगे तो तेल तो पूरा खत्म हो जाएगा, अगर मंजिल का पता ही नहीं होगा तो इसीलिए जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि उसी दिशा में हम आगे बढ़ें। और अभी की जनरेशन के पास तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे टाइम में तो हम पूरा कॉलेज कर लिए, मोबाइल ही नहीं था हमारे पास। मोबाइल आ गया था लेकिन हॉस्टल में अलाउ नहीं था, तो बिना मोबाइल के भी हमने अच्छे से पढ़ाई की। लेकिन आपके पास जो भी डाउट क्लियर है, आपके पास टीचर्स आपके 24 घंटे अवेलेबल है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, तो उनसे जब चाहे कोई भी डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा बचने का टाइम है। कुछ हर टेक्नोलॉजी का कुछ एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एडवांटेज को अपनाएंगे कि डिसएडवांटेज को। क्योंकि सोशल मीडिया आपका ध्यान भी भटका रहा है, क्योंकि आप ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल यूट्यूब का रील्स वगैरह देखने में या कुछ में भी अपना कर रहे हैं, तो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाएंगे कि लक्ष्य से दूर होने में। अभी ये वक्त का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे तो लगेगा काश उस वक्त पढ़ लिए होते तो आज कहीं अच्छी जगह पहुंच गए होते। इसलिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मैम हैं, सर हैं, सभी बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते हैं, आप लोग उनके गाइडेंस का लाभ उठाएं। और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं होली क्रॉस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि यह एक ऐसा छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज है जिसको NAC का A++ ग्रेड मिला था, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ था। और हमेशा देखते रहती हूँ कि A ग्रेड, A+ ग्रेड इस कॉलेज को मिलता रहता है, तो बहुत ही कहीं भी कोई पूछता है या बताने में बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है कि हम उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी स्टाफ को, ममता मैम को, कि उन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का मौका दिया ताकि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। और आप सभी न्यू स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। 2004 की पास आउट छात्रा। इस महाविद्यालय ने मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है, वो हर एक पल को गिना पाना शायद मुश्किल होगा। कभी कोई ये सोचा ही नहीं था कि एक सावली लड़की जो हमेशा शांत सी रहती है उसको मिस आर्ट का अवार्ड मिलेगा। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरे समस्त विद्वान शिक्षकगण जिनसे हमने ज्ञान लेकर आज हम पहुँचे हैं इस मुकाम पे, मैं रीना उपाध्याय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ती में केमिस्ट्री के लेक्चरर पद पर पदस्थ हूँ। और वहाँ पे कुछ बच्चे वहाँ जिनको मैंने 12th में पढ़ाया है यहाँ अध्ययनरत हैं। मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे अपना, जैसे आज मैं आई और देखी कि मेरे जो जूनियर बैच वाले थे उन्होंने कितना ऊर्जा से हमारा वो पहला दिन याद करा दिया, मतलब हम पहली बार कॉलेज में आए थे, उसी प्रकार की चीज़ों को मैंने देखा। यहाँ पे जब हम अध्ययन करते थे तो एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम लोग क्या था स्कूल बस से आया जाया करते थे, तो बस से जाने आने में थोड़ा सा कठिनाई होता था और छुट्टी तो 2 बजे हो जाती थी और 3:30 बजे तक हम लोग बैठते थे, फिर हमारी बस जाती थी। उस समय लगता था और एब्सेंट भी नहीं करना था, ज़्यादा एब्सेंट हो जाएंगे, अटेंडेंस कम होगा तो प्राइवेट स्टूडेंट हो जाएंगे, ये भी एक रहता था। लेकिन उस समय तो लगता था रे कहाँ फंसे, क्योंकि मैं 12th तक सरस्वती शिशु मंदिर यहाँ अंबिकापुर से अध्ययन की थी। लेकिन फर्स्ट ईयर मेरा पहला 94 में यहाँ रहा, 96 में हमने फाइनल ईयर करके निकला। आज मेरी कुछ पहचान है, पर जब मैं इस कॉलेज में पढ़ रही थी तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी भी कभी पहचान होगी। एक्चुअली मैं पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ
बीएड कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, साथ ही वहाँ एज ए इंचार्ज काम कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी में भी बोर्ड ऑफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी मेंबर हूँ। जब मैं और बचपन से ही मेरा ये एजुकेशन अगर देखा जाए तो हॉली क्रॉस का है, मॉन्टेसरी से लेके मैंने पूरा कॉलेज कंप्लीट किया है तो वो मुझे मिला और वो सभी इसलिए मिला क्योंकि यहाँ के शिक्षकगण अगर देखा जाए तो अपने बस कार्य को कर्म करना है ऐसा करके नहीं, हर किसी स्टूडेंट से उनका अपना जो होता है। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। इश्क़े दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना। इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हाय हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार। रबदा भी रब कोई होना, करे कोई हो जादू टोना, मन जाए है मेरा सोना। रब दे सहारे चल दे, ना है किनारे चल दे, डोली है ना कहारे चल दे। क्या कह के गया था शायर वो सियाना, आग का दरिया के जाना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हाय हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले हौले से दुआ लगती है ना।
लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी, तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी, तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तू बातें सारी, कटती है रातें सारी, जलते दिए सी अनबुझे। उठ उठ के रातों को भी तेरी वफाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत के काजल से किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं